वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बेसिस एंड अल्कलीज कि बेसिस क्या होती हैं और अल्कलीज क्या होती हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बेस। एक बेस क्या है? एंड वी से ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड बेस। कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो वी कॉल इट एज अ बेस। तो ऑल मेटल ऑक्साइड or hydroxide are called base. For example, sodium oxide, हमने ये कुछ मेटल के ऑक्साइड लिखे हैं और हाइड्रोक्साइड लिखे हैं. These all are base. Sodium oxide, Na2O is a base, zinc oxide is a base, copper oxide is a base and magnesium hydroxide is a base. तो ये हमने चार जो हैं वो एग्जाम्पल लिखी हैं for base. What is a base? Once again, what is a base? Any substance that is metal oxide और metal hydroxide उसको हम बेस कहते हैं. ओके अब हम एक और जनरल डेफिनेशन भी लिखते हैं. बेस की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि गिवन सब्सटेंस इज अ बेस तो हम उसका रिएक्शन एसिड के साथ कर देंगे. If the product form is salt and water only, then that substance must be base. तो राइट है, कहते हैं कि बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली. ये सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करते हैं. ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक है, बेस की प्रॉपर्टी है. तो आई कैन राइट हियर. ओके सो ये अभी तक हमने एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल dilute sulfuric acid when react with copper 2 oxide it form copper 2 sulfate plus water. हम इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिख लेते हैं. Acid when react with a base that is copper oxide it will form copper sulfate plus water which is a salt and okay. अब हम आते हैं, हम ना बेस में एक स्पेशल क्लास डिफाइन करते हैं. दैट क्लास इज कॉल्ड अल्कली. So now the question is what is an alkali? एक अल्कली क्या होता है? This is very important. What is an alkali? तो हम कहेंगे alkali we say bases that are soluble in water and release OH negative ions are called alkali. ऐसी बेसिस जो वाटर में soluble हों और साथ में OH negative ions release कर रहे हों, so those bases are called alkalis. For example, I say sodium hydroxide या sodium oxide. For example, I say sodium oxide which is a base when it is dissolved in water. So only sodium oxide is soluble in water. या कुछ बेसिस और होंगी जो वाटर में soluble होंगी. जो soluble होंगी सिर्फ वही अल्कली होंगी and they will form sodium hydroxide. So it means sodium oxide को जब हम वाटर में ऐड कर देंगे एंड विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली बिकॉज इट विल रिलीज OH नेगेटिव आयंस. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर में ऐड कर दिया इट विल टर्न्स इनटू आयंस. ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा. सो नाउ सी इट कैन बी रिटन एज Na पॉजिटिव प्लस OH negative. So here we can see it is only the property of alkali that it release OH negative ion. So it mean sodium hydroxide एक alkali है because इसको जब water में add किया रहता है it release OH negative ions. So those substances that release OH negative ion when dissolved in water are called alkali. For example, we have calcium hydroxide. So it can turn into ions. इसमें calcium ion बन जाएगा और साथ में hydroxide ion form हो जाएगा. So this shows that calcium hydroxide is an alkali. So I'll write here. So here we can see calcium hydroxide change into calcium ion and hydroxide ion when dissolved in water. So here calcium hydroxide behave as an alkali because it release hydroxide ions. So those substances that release OH negative ions when dissolved in water are called alkali. अल्कली की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट डेफिनेशन. अल्कली या बेस
are proton acceptor. For example, I say when ammonia, which is an alkali, it is highly soluble in water. When it is added into the water, so it take hydrogen ion from water. ये वाटर से ना हाइड्रोजन का आयन ले लेती है, तो हाइड्रोजन का आयन ले लिया, इट विल फॉर्म NH4 positive plus OH negative. Here we can see that जो अमोनिया है इसने ना H आयन को गेन कर लिया, जो अब H पॉजिटिव आयन है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और साथ में क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन भी रिलीज कर रहा है, सो OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की वजह से अमोनिया इज एन अल्कली, और क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन गेन कर लिया तो गेन करने की वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस टू गेन H पॉजिटिव आयन, कि बेस या अल्कली की ये प्रॉपर्टी होती है दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अल्कली और बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने जस्ट एन इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि बेस और अल्कली क्या होते हैं. In our next video, we'll study in detail about their chemical and physical properties. Take care, students. Bye bye.